So all screen is visible. So we had extracted that folder and then we had made these folders, right? So the main whatever folder you get over here, which has the main method, make all your folders concatenate to that same folder. Don't make a separate set. So and make the controller, entity, repository, and service. In the control, so we'll make a entity class, correct? Which so rating is also over here. Then we had discussed for each entity. Okay, so rating is not an entity. Rating is just a part of the product. Normal class it is. We will be having a set of controller, service, and repository. Correct? So for product, I have product controller, I have product repository, and I have product service. The controller and the service will be classes, the repository will be interface. So controller and service will be classes and the repository will be an interface which extends JPA repository. Now JPA is one level above Hibernate. Okay, when we extend it, it has to give two arguments. One is the model class for which you want this repository for, and second is the type of the data type of the ID attribute of that class, which is integer. So the wrapper class over here, and annotate each of the classes with their respective annotation. This is a repository, so annotate at repository. This is a service, so annotate with at service, and this is a controller, so annotate with. So if you want to send JSON data, annotate with REST controller. If you want to send a fully finished front-end HTML document, annotate with controller. Correct? Yes. So the controller will communicate with. You see this service layer. So here I need an object of the service layer. So I will need an object of the product service over here. Product service, right? Just give a space and give again control space bar. It will give you the object also small with a small p. Now from where do I get this object from? The IoT container. I just have to say auto wired. So if we have declared the class with at the rate stereotype annotation or at the rate component, the IOC container will have a bean of that class. So we have annotated this class with which annotation? Service, which is a stereotype annotation, right? So the IOC container should have a bean of this directly auto wired from there. Okay, the service will communicate with repository. So I will have a object of that over here. Product repository, product repository, and I will auto wire that. Okay, we're setting up the basic. Okay, then wherever your database is there, so all that configuration we have to store in this. In the resources, we have a properties file, application.properties. Okay, so you have to configure this. So first you have to show on which port your application will run. So you have to say server.port. Okay, so I am giving port as 8083. You can give any other port. Okay, and it has a fixed set of configurations. So no need to experiment with that. So if you have it once, so if I have it from my previous any project, we can just use that properties. So this is just like a template we have. So I'll fetch it from here. Okay, so let me fetch it from here. So these are just templates we have. You can copy it and paste it in your properties file. Okay, so the driver I'm using is this is the driver we are using for JDBC, right? So you can use the same over here. Then database. So now we'll create our own database. We haven't made a database for what do you say? So let's make a database for Spring Boot. So we'll come here. So
So let's make a database for IET. What did we make last time around? ET001. Okay, I'll make Spring Boot DB. Okay, database I've made. I'll create one for here. So we will connect to this database. So whatever classes we have written, entity classes, their tables will be made over here. Correct? So give that over here. Username is root, password is blank. Okay, you can, and this you all know, right? You can comment on as of now. In comment is control slash. This is the comment. So this much is more than sufficient for us. Okay. So even if we give this much, basic configuration is more than sufficient. Rest I have commented out. When needed, we will try to use it. Else no need to keep it. So all this configuration should be in the application properties file. Okay. ठीक है. सो कहाँ थे हम लोग? ये प्रॉपर्टी सेट हो गए. ठीक है. अभी प्रॉपर्टी सेट हो गया, फिर आपने क्लासेस बना लिए आपने. ठीक है. अब आप अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हो. ये इसमें कैसे आया डेट 42 JDBC? इसमें किसने लाया? इसमें किसने लेके आया इसको? इसको हटाओ यहाँ से, काम ही नहीं इसका इसमें. ठीक है. अब रन करना रहेगा आपका एप्लीकेशन. तो राइट क्लिक करो आपके मेन क्लास पे, या तो यहाँ राइट क्लिक करो या यहाँ राइट क्लिक करो, और रन एज जावा एप्लीकेशन करना है. ठीक है. नॉट ऑन सर्वर. ठीक है. अब ये सारा का सारा सर्वर का हैंडलिंग स्प्रिंग बूट ने मैनेज कर लिया. ये जो है ना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये इसने सब मैनेज कर लिया. अपने को उसको ट्रीट करना है जावा एप्लीकेशन. अब रन करना है, देखना है कि अब यहाँ पर जब तक मैसेज नहीं आ जाए स्टार्टेड का और कितने सेकंड लगे और कौन से पोर्ट पे शुरू हुआ, तब तक कुछ नहीं करने का. ठीक है. ये अपना बता रहा है कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम स्प्रिंग बूट का. हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं? स्प्रिंग वर्जन 2.5.8. ठीक है. तो वर्जन 2 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं 3 के अंदर. अभी 3 के बाद 4 भी रिलीज़ हो गया है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या मार रहा है? ये बोल रहा है एंटी एरे क्रिएटिंग बीन JDBC टाइप could not determine recommend JDBC type for Java. तो ये बोल रहा है कि उसको ये वाला क्लास नहीं मिल रहा है. कर कौन सा? रेटिंग वाला. ये तो नॉर्मल क्लास ही है, बस अपन जो उसको यहाँ इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं. तो उसको तो अपने को एंटिटी बनाना नहीं है. ठीक है. तो अपन उसको कर देंगे ऐड एम्बेडेबल कर देंगे, ताकि वो उसके अंदर उसको एम्बेड कर दे. देखते ये काम करता है. ठीक है. उसको एम्बेडेबल कर दिया. अब देखते हैं ये काम करता है क्या. रन एज जावा एप्लीकेशन. ये हिकारी भी है ना, ये भी पढ़ने लायक चीज़ है ना क्या? ये भी है ना, डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग आता है. काम की टॉपिक है. बताओ. देखो आ गया, देखो मैसेज आ गया. तो देखो कौन से पोर्ट पहला शुरू हुआ एप्लीकेशन, और ये लिख के आया स्टार्टेड लिख के आया, और सेकंड कितने लगे. जब तक ये नहीं आया तब तक कुछ करना नहीं है. अब जाके चेक कर लो आपके डेटाबेस में आपकी एंटिटी क्लास बन चुकी होंगी. क्या आपका डेटाबेस है? ये आपकी एंटिटी क्लास दिख रहा है प्रोडक्ट. इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स है देख लो. आ गए? करेक्ट. तो ऐसा हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं. ओके. तो अब अपने को अगर कुछ पोस्ट करना है तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और क्या करेंगे, मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है. मैं करूँगा ऐड प्रोडक्ट. ठीक है. और चूंकि मेरा रिटर्न रेस्ट कंट्रोलर है, तो आई हैव टू रिटर्न अ व्यू. राइट. आई हैव टू रिटर्न अ व्यू. तो वो व्यू क्या रहेगा? कुछ भी नाम दे दो. लेट्स से टेस्ट नाम से बनाया मैंने.
अब वो व्यू कहाँ होंगी अभी अपनी, where did we keep it in the string MVC web INF के व्यूज फोल्डर में ना। यहाँ पर आपकी जो जितने भी व्यूज हैं आपके रहेंगे रिसोर्सेज के टेम्पलेट्स फोल्डर में, दिख रहा है रिसोर्सेज, उसके टेम्पलेट्स फोल्डर है ना, वहाँ रहेंगे बस। तो वहाँ जाओ और एक HTML की बना दो, एक अदर में जाके बना दो HTML फाइल बना दो, ठीक है। तो नाम दे दो उसको, आप नाम का टेस्ट दिए। ओके, अगर अभी आप ये व्यू रख रहे हो तो आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी थाइम लीफ की, तभी वो जो व्यूज़ को डिटेक्ट करेगा। तो एक डिपेंडेंसी ऐड कर लो थाइम लीफ। तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से निकाल के, दिख रहा है ये आपने इसमें भी ऐड कर लो। टाइम लीफ चलने के बगैर वो व्यू दिखाएगा नहीं। तो इधर अपने लास्ट में डिपेंडेंसी में जाके कंट्रोल शिफ्ट F फॉर्मेट करने के लिए होता है उसको, तो फॉर्मेट करना तो फॉर्मेट कर सकते हैं और सेव करो तो डिपेंडेंसी डाउनलोड कर देगा। ठीक है, देखो डिपेंड डाउनलोड कर रहा है। जब भी कोई डिपेंडेंसी ऐड करो तो प्रोजेक्ट क्लीन कर लिया करो, ये अच्छा प्रैक्टिस है। प्रोजेक्ट क्लीन कर लिया करो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद। ओके, तो अभी कहाँ जाना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में गए हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, रिटर्न टेस्ट कर रहा है। टेस्ट के अंदर क्या है, हम टेम्पलेट्स में गए। अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे H1 वेलकम, ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया इधर, तो ये कर दिया। अभी ये कहाँ पर आ गया, अपना कंट्रोलर में आ गया। वो एक्सेस करना है तो कुछ एंडपॉइंट देना पड़ेगा उसको, तो रिक्वेस्ट मैपिंग दे देता हूँ स्लैश, कुछ भी हेलो दे दिया। ठीक है, अब ये सब जो हो गया, ठीक है, दिख रहा है स्टार्टेड, कितने सेकेंड लगे और कौन से पोर्ट पे है। अभी आप जाके डायरेक्टली पोर्ट पे लोकल होस्ट करके रन करके देख सकते हैं। तो लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर है आपका, और स्लैश क्या दिया है, हेलो, आ गया, आ गया ना। तो ये काम कर रहा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको समझो एक प्रोडक्ट ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, अभी एक प्रोडक्ट ले लिया, तो इसको रिटर्न करना ही है। तो क्या किया मैंने, एक प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, और समझो अपन बना दिए बिल्डर से, प्रोडक्ट डॉट बिल्डर लगाते जाओ उसके आगे। करना है अपने को उसकी, पहले देना आईडी तो आपके पास आएगा, टाइटल देना पड़ेगा लैपटॉप डॉट, फिर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है, डेल लैटिट्यूड कुछ भी दे दो। फिर उसका क्या क्या देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, क्या क्या है, टाइटल है, टाइटल है, क्या है, प्राइस है, दे दिया 100.0। फिर क्या है, और कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो अपना यहाँ पर था ना ये टेक्स्ट स्टोर का, ठीक है, दिख रहा है, इसमें से एक ले लो, देखो ये ले लेते, ये टाइटल क्या है, ठीक है, टाइटल ये ले लिया मैंने, ओके। और प्राइस कितना है, तो प्राइस वो ले लिया। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, छोटा लो, ज़्यादा मत लो, इतना काफ़ी है। कैटेगरी क्या आ रहा है इसका, मेंस क्लोथिंग, और क्या ऐड करना है, फिर डॉट इमेज ना, इमेज हम यहाँ से ले लेंगे, ये इमेज है, डबल कोट में डाल देंगे। और क्या बचता है फिर उसका, डॉट रेटिंग
डॉट रेट है ना, रेटिंग डॉट रेट क्या करेंगे उसको, हो जाएगा वो क्या दिया है 3.9 डॉट, ऐसा नहीं होगा, रेटिंग डॉट रेट ऐसा सेट नहीं होगा डायरेक्ट, ये एम्बेड हो गया ना इसमें। ओके, एक काम करते हैं इससे डॉट बिल्ड कर देते हैं, पहले डॉट बिल्ड कर देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ भेज देंगे, सर्विस को भेज देंगे, किसको भेज देंगे, उसमें फंक्शन बना देंगे ऐड प्रोडक्ट नाम का फंक्शन है, क्या ऐड प्रोडक्ट नाम का सर्विस में है क्या, नहीं है, तो माउस ओवर करो उस पर, क्रिएट कर लो। ठीक है, तो पहले कॉल कर रहे हैं, फिर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अभी किसको भेज देंगे हम लोग, अभी प्रोडक्ट रेपोजिटरी अपना काम करेगा सेशन के जैसा। तो फंक्शन क्या था, हाइबरनेट में सेव करने के लिए, और अपन से प्रोडक्ट पास कर देगा, बस ये हो गया, और ये रिकॉर्ड जाके सेव हो जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, और फिर अपना कंट्रोलर क्या देगा अपने को, कंट्रोलर अपने को क्या रिटर्न करेगा, टेस्ट, क्या करेगा, टेस्ट, और टेस्ट क्या दिखाएगा अपने को, तो यू कैन से प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, आप ये दिखा सकते हैं कस्टमर, तो अब जाके हिट करते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके, ये अपना है ना, हेलो किया, और क्या है ये, अब तक चालू हुआ नहीं क्यों। ठीक है, देखते जाके कुछ डाटा से कुछ आया क्या नहीं, यहाँ तक कुछ आया नहीं दिख रहा है, दिख रहा आ गया एक, आ गया। अब मैं वापस अगर इसको हिट करूँगा तो ये ID 2 करके ये सेम डाल देगा, है ना। अब हिट करता हूँ मैं हेलो को, पुराना वाला टेस्ट ले रहा है, ये नया वाला टेस्ट नहीं ले रहा है ये, देखो। तो रिफ्रेश जब करेंगे अपन तो 2 दिखाएगा अपने को, है ना। और यहाँ पर ये रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है, हमेशा अपने को उसको स्टार्ट करके टू रीस्टार्ट है। तो जो चेंजेस अपन ने, जो फाइल पहले बन चुके थे ना स्टार्ट के पहले, उसको डिटेक्ट नहीं करता है वो। तो अपना टेस्ट बना था जब उन्हें स्टार्ट कर चुके थे पहले उसको उसे डिटेक्ट नहीं किया उसने। तो वापस स्टार्ट करेंगे ना उसको तो डिटेक्ट कर लेगा, तो ये मैसेज आएगा प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुल। ठीक है, ये आपको वेट करना है जब तक वो मैसेज नहीं आ जाता। ओके, मैसेज आ गया स्टार्टेड का, वेट करो जाके, नाउ यू विल गेट योर मैसेज प्रॉपर। ये ऐसे कैसे करना है, ओके ओके, अपन अलग हिट कर रहे हैं एंड पॉइंट, नहीं अपन हेलो ही हिट कर रहे हैं, रिटर्न टेस्ट कर रहे हैं अपन, और टेस्ट ये रहा, टेस्ट में तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, सेव भी किया अपन ने इसको। तो फिर ये तो इसको तो कर रहा है, रिटर्न हम टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट के अंदर अपन ने इसको क्या लिखा है, test.html, और ये प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली लिखा है इसके अंदर अपन ने, फिर ये इधर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वो इंसर्ट सब कुछ कर रहा है, वहाँ तक तो जा रहा है। देखो हमने 4 बार अभी कर दिया ना, तो 4 प्रोडक्ट दिखेंगे। आने के बाद में उसने इस H1 का वाला क्यों नहीं दिखा रहा है, पुराना वाला ही दिखा रहा है वो, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली ही दिखा रहा है, इसको क्यों नहीं सेटअप कर रहा है वो। इधर कंट्रोलर हेलो ही कह रहे हैं ना अपन,
करना क्या है? ओह दिस इज कंट्रोलर क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज रेस्ट कंट्रोलर ना? दिस इज कंट्रोलर ना? वी वांट द व्यू, है ना? हाँ वी वांट, इसके लिए वो टेस्ट स्ट्रिंग दिखा रहा है वो। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये अपने को वो व्यू दिखा देगा। आ गया? यहाँ पर आके अटक रहता है। ओके सो नाउ यू आर वांट टू ट्राई दिस। ठीक है, तो कंट्रोलर से आप क्या रिटर्न करोगे? वेब, वेब हमको रिटर्न करना है। अगर हमने जो ऑब्जेक्ट ऐड किया है वही रिटर्न करना है अगर, तो आप यूज़ करते हो रेस्ट कंट्रोलर। तो आप डायरेक्टली फिर यहाँ से कर सकते हो रिटर्न, कि जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो आपका ये ऐड प्रोडक्ट है, दिस शुड गिव समथिंग बैक टू यू, राइट? और ये तो वॉइड है, तो इसको बोलना चाहिए कि हमको जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो वो प्रोडक्ट वापस दे दो, और यहाँ लिख दो रिटर्न। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब ये कौन सा कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं हम लोग? यहाँ रेड 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 डॉट दिखा रहा है ये, पता नहीं क्यों। ओके, टाइप क्या होगा? टाइप क्या होगा अभी इसका? प्रोडक्ट ना, स्ट्रिंग तो नहीं होगा, तो इसके लिए सेव कर दिया। ठीक है, अब जब इसको रन करके देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स में आपको वो प्रोडक्ट ही मिल जाएगा जो आप ऐड कर रहे हैं। दिख रहा है? तो ये फ़र्क है इसमें। आपके कंट्रोलर में और रेस्ट कंट्रोलर में ये वैल्यूज अगर आपने को लेना है यूज़र से, तो या तो वेब पेज बनाओ और उसमें से लो, या फिर आप एक एपीआई टेस्टिंग टूल आता है पोस्टमैन नाम का, तो इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से रिक्वेस्ट लेने के अपने पास स्प्रिंग बूट में, या तो आप ये चीज़ें इंडिविजुअली ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट पैरम। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट बाय रिक्वेस्ट पैरम। अब ये जितने भी चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 मैं लूँगा इंडिविजुअली, तो मैं लूँगा @ ठीक है, तो जो फंक्शन का नाम वही नाम मैं देता हूँ मोस्टली एंड पॉइंट को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब इसमें कितना ऐड करना रिक्वेस्ट पैरम अपने को? रिक्वेस्ट पैरम, यहाँ पर मैं इसको समझो नाम दे रहा हूँ ए, तो ए में किसे टाइप करूँगा? टाइटल से। टाइटल किस टाइप का होगा? ठीक है, तो ऐसे, तो ये पैरामीटर के अंदर आप जितने चाहो उतने दे सकते हो, कॉमा देके। फिर दूसरा ये ए रहेगा पोस्टमैन से लिंक। ठीक है, तो ये पोस्टमैन के लिए है और ये टाइटल मेरे जावा के लिए है। तो पोस्टमैन में जो बी टाइप टाइप करूँगा मैं, जिससे बी, वो मेरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। डिस्क्रिप्शन भी किस टाइप का होगा? ठीक है, अब यू कैन टेक एनी वेरिएबल ओवर हियर। ओके, तो ज़रूरी है कि ये आपके क्लास के नाम से मैच हो, इससे मैच हो कंपलसरी नहीं है, ये आपके लोकल वेरिएबल से आपको जो लेना है वो ले लो। ठीक है, तीसरा क्या होगा? सी, प्राइस। प्राइस डबल रहेगा ना? चौथा कैटेगरी, तो कैटेगरी भी ले लेते हैं। और की क्या आएगा? इमेज। ठीक है, ये हो गया। अब और नहीं तो फिर क्लोज कर देने का। अब यहाँ पर अपन जो बिल्डर बनाएंगे अभी वो हार्ड कोड तो नहीं होगा, ये इसका वैल्यू कहाँ से आएगा? टाइटल से, इससे अपने अपनी वेरिएबल से ना। इसका कहाँ से आएगा? जिसकी अपना लोकल वेरिएबल से। इसका कहाँ से आएगा? ठीक है, इसका कैटेगरी से
गया इसका, इमेज से आ गया, राइट। तो अपन ने उसी को फंक्शन को कॉल कर दिया अपने को। तो ऐड प्रोडक्ट को तो अपने को एक ऑब्जेक्ट भेजना है प्रोडक्ट का, अब वो आप खुद से बना के भेजो या किसी से बना के भेजो, तो ये प्लग एंड प्ले होगा बस, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको, यूटिलिटी को। अब जब मैं सेव करूँगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब मैं जब कॉल करूँगा इस पॉइंट को, ठीक है, तो इसको आप कॉल करेंगे पोस्टमैन से, तो पोस्टमैन में आ गया, मैं दिखा। तो कलेक्शन में जाने का प्लस करके आपका खुद का बनाना नया कलेक्शन, ठीक है। तो मैं बनाना ब्लैंक कलेक्शन है, ओके, उसको नाम दे देंगे हम, उसका नाम दूंगा मैं ET001 स्प्रिंग बूट, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, ताकि आपको याद रहे बस, बाकी उसका और कोई पर्पस नहीं है। आ गया। अब इसके अंदर जाके अपना इस पर प्लस ये 3 डॉट पे क्लिक करो और एक नया रिक्वेस्ट ऐड कर लो, और रिक्वेस्ट का पाथ यहाँ दे दो। क्या होगा आपका 83 ना, क्या एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये कौन सा मैपिंग है, अब जब इंसर्ट क्वेरी का चल रहा है ना इधर, इंसर्ट क्वेरी के लिए हमेशा पोस्ट मैपिंग यूज़ किया करो। क्या यूज़ किया करो, पोस्ट मैपिंग। जैसे मैपिंग किस टाइप का है, अभी हम लोग पैराम्स पास करने वाले कि नहीं करने वाले, तो अभी वो पैराम यहाँ पास करेंगे, तो अपन क्या पास करते थे, ए किससे, ए में क्या जा रहा था, टाइटल, ठीक है। तो लेट्स से हम बोल देते हैं 1+13, ये टाइटल है। बी में क्या था, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 12 GB रैम, 1 TB स्टोरेज, ये आ गया मैंने डिस्क्रिप्शन। रेड कलर कुछ भी दे दो डिस्क्रिप्शन में। C6 का टाइप था प्राइस, ठीक है, कुछ भी दे दो 35,000। और डी से कैटेगरी दे दो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ई से इमेज ऐसे ला के डाल दो, ठीक है। जो आपकी इमेज है वो, बाकी जो कहीं और से लेके डाल दो इमेज का पाथ कोई जो आपको मिल जाए, यही पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखो ये सेव कर देगा और मुझे रिस्पॉन्स कर देगा, रिटर्न दिख रहा है कि हमने ये रिस्पॉन्स। तो एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर योर टास्क फिनिशेज व्हेन यू गेट द रिस्पॉन्स ऑन पोस्टमैन, देन यू गिव दिस लिंक टू द फ्रंट एंड टीम कि भाई आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, ये लिंक हिट करो, इतने पैरामीटर्स पास करो, आपको प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमने ऐसा ऐड किया। अब इसका एक और तरीका है, अगर जो है, ठीक है, तो मैंने ABC लिखा, आप अपने ढंग के नाम दे सकते हो, ओके। अब मैं एक और बनाता हूँ, जो पैरम 1 बनाता हूँ, उसमें अगर आपका ये जो जावा का वेरिएबल और आपके इसका वेरिएबल का अगर नाम सेम हो, ठीक है, तो आप फिर इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा डायरेक्ट ऐसा दे सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो सेम। तो अगर आपको ये हिट करना है पैरम 1, तो क्या देना पड़ेगा आपको, तो अगर आपको पैरम 1 हिट करना है, ठीक है, तो ये जो होता है ना इसका एंड पॉइंट कंट्रोलर में है, उसको कॉपी करने का, उसको यहाँ लिखने का ऊपर, तो वो यहाँ पर दिख जाता है, ताकि हमें मालूम पड़े कि हम कौन सा हिट कर रहे थे, और सेव करने का उसको दिख रहा है। वापस में जाता हूँ मेरे ET001 के ऊपर, 3 डॉट के ऊपर जाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, आ गया, पुराना वाला रिक्वेस्ट ले लिया। अभी मैं ये पैरा में निकाल रहा हूँ सारे, ठीक है। कौन सा हिट कर रहा हूँ, 1 वाला, ठीक है। उसको ये नाम है पर 1 दे दिया, उसको सेव कर देंगे ताकि यहाँ पर लिखा आएगा। अब मुझे जो पैरम्स देने हैं वो क्या देने हैं, अब की क्या होंगी, यही की होंगी, यस, जो आपने जावा वेरिएबल लिया है वही की होंगी, ठीक है। तो iPhone 16 17 अभी लेटेस्ट कौन सा आया अभी, हाँ 17 आया क्या, टाइटल 17 दे दिया, ठीक है।
दे दिया, जो भी आपको करना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो भी आपको करना है इसमें क्या है, 8 GB रैम और क्या है 1 TB स्टोरेज, ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। प्राइस 1.5 लाख रुपए का, और कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इमेज, ठीक है। मैं तो फिलहाल सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ से इमेज का पाथ करना चाहे वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये अपना कौन सा है, पाथ 1 है ना। अब सेंड करता हूँ उसको, क्या बोल रहा है ये, 404 बता रहा है ये, ऐड प्रोडक्ट बाय रिक्वेस्ट पैरम, उसको नहीं मिल रहा है ये सब। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, आप उन्हें सेव ही नहीं करे, नॉनसेंस। अब हो गया, रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, हो गया, ओके, समझ में आया तुम लोग को। तो ये हम लोग ले सकते हैं, पर अभी ये बहुत, एक तरीका तो ऐसा है कि आप पैरामीटर से लो, एक तरीका है कि आप पाथ वेरिएबल से ले सकते हो, पाथ वेरिएबल से, ठीक है। तो आप पाथ वेरिएबल से ले सकते हो। तो पाथ वेरिएबल क्या होता है, जो आपका यूआरएल है ना उसका पार्ट ही बन के जाता है वो। देखो क्वेश्चन मार्क तक आपका यूआरएल है, इस पर देखो, इसमें जो क्वेश्चन मार्क तक है ना आपका यूआरएल रहता है, क्वेश्चन मार्क तक, देखो यहाँ तक आपका यूआरएल है, इसके आगे सारे पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर। तो अगर आपको आपके यूआरएल के अंदर ही भेजना है, देखो तो 8083/लोकल होस्ट, ये सब आपके यूआरएल में आता है। तो अगर आपको एज ए यूआरएल वो डेटा भेजना है तो आप यूज़ करो पाथ वेरिएबल। क्या यूज़ करो तो देखो यहाँ पर आ गए। अभी क्या कर रहा हूँ, बाय पाथ वेरिएबल, ठीक है। अब इसका भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम। अगर आपको अलग नाम देना है तो आप लिख दो इधर ए और बी और सी, कोई भी इधर आप क्योंकि सेंसिबल नेम्स, ओके। मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, आप लोग सेंसिबल नाम दे सकते हो वेरिएबल के नाम से, ठीक है। तो अभी कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है। और फिर इसको हम करेंगे पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या करेंगे, पाथ, ठीक है। बस इसको उससे रिप्लेस करो, बाकी सब सेम है। इससे फ़र्क इतना है कि वो एज अ यूआरएल ही जाता है। तो आपको जब वो वैल्यू एंटर करने पड़ेंगे, आपको इन द यूआरएल ही वैल्यू एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब सेव कर रहा हूँ मैं, कौन सा एंड पॉइंट है अभी ये, तो वापस गया मेरे मेरे फोल्डर पे गया, 3 डॉट पे गया, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, बना रहा है वो, यहाँ पर गया, इस पर लिखा, अब देखो इधर, तो ये ठीक है। अब पहला पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, पास करने ना, ठीक है। तो मैं लेट से पास करता हूँ पहले टी शर्ट, टाइटल क्या है, टी शर्ट, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेड फ्रॉम कॉटन, ठीक है। फिर प्राइस 99.9 का है, फिर कैटेगरी, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, गारमेंट्स, और फिर उसका इमेज, इमेज ले लो फिर इधर से, यहाँ पर आप स्लैश के बाद जो दोगे वो एज इमेज चला जाएगा पूरा इसका, ठीक है। और देखो अभी ये क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो जाएगा, फिर ये इसको
अलग कुछ नहीं समझने लग जाए, यहाँ पर इशू आ सकता है मुझे लग रहा है। ठीक है, सेंड कर रहा हूँ, दिख रहा है? ठीक, कॉटन वाला का इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आपको आपकी इमेज, तो इसके लिए ऐसी चीज़ें फिर अपने को फॉरवर्ड करना चाहिए पाथ वेरिएबल में पास करने के लिए। ठीक है, तो सब इसी पर टेस्ट इमेज दिख रहा हूँ, बस टेस्ट इमेज। ठीक है, तो डेटा अगर इस टाइप का हो तो क्या बोल रहा है, ये काम नहीं कर रहा है ये। नो स्टैटिक रिसोर्स ऐड प्रोडक्ट बाय पाथ वेरिएबल, तो आपने सेव किया ना? ठीक है, ऐड प्रोडक्ट बाय पाथ वेरिएबल पोस्ट मैपिंग में किया है, राइट? दो देखो, दो स्लैश आ गया ना, दिख रहा है? तो एक स्लैश निकाल दो, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है इधर। हो गया? अब अगर मैं वो प्रोडक्ट का पार्ट डालता, देखते हो लेता है क्या? ये वाला डालता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो गड़बड़ कर रहा है ना? तो ऐसे जहाँ जहाँ स्लैश स्लैश हो तो रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग इट एज अ पाथ वेरिएबल, यू कैन सेट इट एज अ रिक्वेस्ट पैरम। ठीक है, तो इसका भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है पाथ वेरिएबल का। अभी अगर आपने सेम नाम देना है, ठीक है, तो मैं इसको भी 1 लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पाथ वेरिएबल का नाम क्या हो, एक ही हो, टाइटल पाथ वेरिएबल का और आपके जावा के वेरिएबल का नाम अगर सेम हो, ठीक है, ठीक है, तो अगर एक ही हो आपका उसका नाम, ऐसा ये जो है ना, सेम है ना, तो फिर आप ये निकाल सकते हो। तो क्या, अगर सेम ही आपने दिया हो तो रेस्ट रिमेन्स द सेम, तो क्या क्या मैंने पाथ वेरिएबल 1 कर दिया। ओके, रन किया, इसको सेव हो गया, यहाँ पर आया सिर्फ पाथ वेरिएबल 1 कर दिया बस। ठीक है, टी शर्ट लिखा, इधर ट्राउज़र कर दिया, मेड फ्रॉम कॉटन 199 कर दिया। ठीक है, अब सेंड करके देखता हूँ, आया? ओके, तीसरा तरीका है कि आप पूरा एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो एक साथ। ठीक है, वो आता है रिक्वेस्ट बॉडी। क्या आता है वो? रिक्वेस्ट बॉडी, ऐड प्रोडक्ट बाय क्या, रिक्वेस्ट बॉडी। तो जो मेरा एंड पॉइंट है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो मेथड का नाम भी वही रहे। ठीक है, अब मैं पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा ना। तो वहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट ही आने वाला है, तो मुझे फिर यहाँ बनाने की और सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट आएगा मैं पास कर दूंगा, है ना। अभी काम सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब ये एंड पॉइंट हिट करना है अपने को। तो अभी क्या कर रहा हूँ, पहले मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट का, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। ओके,
ये ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट पूरा का पूरा पास कर सकता हूँ, प्राइमरी की छोड़ के। यहाँ पर आ गया ऐड, ठीक है। तो जाने का बॉडी पे जाना है, रॉ लेना है और जेसॉन लेना है, ठीक है। फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो मुझे पास करने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग में भी पास नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको जो पास करना है वो आपको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूटर कर दिया मैंने। और ठीक है, होंडा के डाल दिया कुछ भी। इसके बाद कुछ भी तो कॉमा निकाल दो, उसका कुछ है नहीं इसके बाद, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल से मैं टेस्टिंग डेटा डाल रहा हूँ, आप लोग से डाल देना, ठीक है। और अभी क्या है, ऐड प्रोडक्ट बाय क्या, बाय रिक्वेस्ट बॉडी। और कुछ देने की ज़रूरत नहीं आगे पीछे, हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है बस, ठीक है। एंड सेंड सेंड कर दिया। वो पूरा क्या बोल रहा है ये, लोकल होस्ट 88D3 ऐड प्रोडक्ट बाय रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट। सेव नहीं किया वापस, सेव तो किया था शायद ना मैंने, बॉडी रॉ जेसन, हाँ सेंड किया, ठीक है। सेव नहीं किया था, हो गया अभी। तो ये 3 तरीके से आप अपने डेटा को पोस्ट कर सकते हैं।